السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کنور حسام حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے، جہاں پر ایف آئی اے نے صحافی محسن بیگ کو حراست میں لے لیا۔ محسن بیگ کے بیٹے نے والد کی حراست میں لیے جانے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ٹیم نے محسن بیگ کو گھر سے حراست میں لیا۔ گرفتاری کے دوران ٹیم کے ساتھ مزاحمت بھی ہوئی، ایسا موقف سامنے آیا ہے ایف آئی اے کا، جبکہ محسن بیگ نے ٹیم پر فائرنگ بھی کی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، فائرنگ سے ایف آئی اے کا ایک اہلکار زخمی ہوا ہے۔ محسن بیگ کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، ایف آئی اے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ محسن بیگ کو ایف آئی اے کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ناصر، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، اب تک کی کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ بالکل، دیکھیے جی، صحافی ہیں محسن بیگ، ان کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے جو ہے مقدمہ درج کیا ہے، اور مقدمہ جو ہے وفاقی وزیر مراد سعید کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے حکام نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر مقدمے میں یہ متن جو ہے اپنایا گیا ہے کہ میری وزارت کو بہترین کارکردگی پر نمبر 1 ایوارڈ دیا گیا۔ مراد سعید نے یہ موقف اپنایا ہے مقدمے میں، اور یہ بھی کہا کہ جی فرغریدہ کے پروگرام میں محسن بیگ نے میری کردار کشی کی ہے، اور پروگرام سے متعلق کلپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا، اور دوران پروگرام محسن بیگ نے غریدہ فاروقی کے سوال پر نازیبا ریمارکس بھی دی، اور محسن بیگ نے کہا کہ پتہ نہیں وہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کس لیے اس سے مطمئن ہوں۔ تو اس طرح جو صحافی ہیں محسن بیگ، ان کو ایف آئی اے نے حراست میں لیا ہے۔ باقاعدہ طور پر اسلام آباد پولیس نے بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے عدالت میں، جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر پیش کیا جانا تھا۔ مقدمہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 3 بجے تک جو ہے، باقاعدہ 3 بجے کے بعد جو ہے اس حوالے سے جو ہے ختمی فیصلہ ہوگا، آیا کہ جو محسن بیگ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اسلام آباد پولیس کی جانب سے، وہ جائز ہے کس طرح اس صورتحال کو نپٹا جائے گا، اور جو ہے تمام تر معاملات کو جو ہے ملزم کو پیش کرنے کے حوالے سے جج کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں، اور 3 بجے تک کہا گیا ہے دوبارہ سے سماعت ہوگی اور صورتحال کو دیکھا جائے گا۔ جی 3 بجے کے بعد سماعت ہوگی اور صورتحال کو تفصیل سے دیکھا جائے گا۔ ناصر بٹ، نمائندہ کیپٹل ٹی وی، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ 10 سیشن عدالت میں صحافی محسن بیگ کی گرفتاری کا کیس، ایس ایچ او مارگلہ میاں خرم عدالت میں پیش۔ محسن بیگ کو لے کر نہیں آئے، وہ بہت زخمی ہیں، وکیل کا ایسا کہنا ہے، جبکہ آپ اتنے جذباتی نہ ہوں ایس ایچ او اور کون ہے، جج کا ایسا کہنا ہے۔ ایف آئی اے نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے جج کے؟ مزید ریمارک سامنے آئے، کہا کہ آپ ریکارڈ نہ دکھائیں، جج کا اختصار۔ یہ مقدمہ ابھی 12:40 کا ہے، جھوٹا مقدمہ ایف آئی اے اور تھانہ مارگلہ پولیس نے دیا ہے، ایسا موقف سامنے آیا ہے وکیل کا۔ روز نامچے اور مقدمے کا رجسٹر کدھر ہے، ایسا سوال کیا گیا ہے جج کی جانب سے، اور وہ مزید کہا گیا کہ وہ اب مینول نہیں ہے۔ ایس ایچ او نے مزید ایسا بتایا وہ عدالت میں پیش کریں گے، جج کی ہدایات سامنے آ گئی ہیں۔ محسن بیگ کون ہیں اور کہاں ہیں، جج نے یہ سوال کیا۔ ملزم کو لے کر آئیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر پیش نہیں کیا، ایس ایچ او کا ایسا کہنا ہے۔ ملزم کو پیش کریں اور 3 بجے اس کو ختم کرنا ہے، جج نے ایسا کہا۔ لوگ ان کے گھر میں سول ڈریس میں انٹر ہوئے، جہاں پر ان کی ہاتھا پائی ہوئی کہ آپ کون لوگ ہیں، وہاں پر وہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن اپنی نہیں لے سکے موقع کے اوپر۔ جب ہم نے پھر انہوں نے 15 پہ کال کی، اور وہ میرے کلائنٹ ہیں، انہوں نے مجھے کال کی کہ اس طرح کچھ لوگ آ گئے، آپ کائنڈلی آئیں، یہاں پر کیا ایشو ہے، لیگل کارروائی دیکھیں۔ میں موقع پہ گیا، اس ٹائم مین وائل ایس پی صاحب بھی پہنچ گئے، جو علاقہ تھانے کے، اور ڈی ایس پی بشیر صاحب بھی پہنچ گئے۔ جب وہاں پر وہ پہنچے، ہم ان کو کہتے رہے کہ اگر کوئی وارنٹ ہے، محسن بیگ صاحب موجود ہیں، ساتھ چلنے کو تیار ہیں آپ کے۔ ایس پی صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے کہا سر وارنٹ دکھائیں، میں بندہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اٹھا کر لے جائیں بندہ، ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بلیٹن میں بات کریں گے، ملک کی تاریخ میں پہلی بار فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، پیٹرول 12 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول 159 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے 53 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت 154 روپے 15 پیسے ہو گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 43 پیسے
पैसे का इजाफा सामने आया है। फी लीटर लाइट डीजल की कीमत 123 रुपये 97 पैसे बढ़ा दी गई है और इस कीमत का इतलाक भी कर दिया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 8 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने तेल की कीमतों को भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो का ये मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जाते जाते इमरान खान ने आवाम पर महंगाई की बमबारी तेज़ कर दी है। CNG स्टेशन भी 3 माह से बंद हैं। मजीद कहा कि तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई में मजीद इजाफा करेगा, जबकि आखिरी दिनों में तो इमरान खान को आवाम पर तरस खाना चाहिए। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया है। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, आटा, चीनी, दवाई, सब्जी की कीमत बढ़ी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये से ज़ायद इजाफा हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म ख़त्म नहीं होगा। आवाम को मजालिम और ये जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। आवाम को महंगाई को सजा देने वाली हुकूमत से निजात दिलाकर रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा आवाम का माशी कत्ल है। हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की कीमत 159 रुपये हुकूमत के सर है। हमजा शहबाज का मजीद कहना है कि हर 15 दिन पर आवाम की जेब पर डाका डाला जाता है। सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। आखिर किस एजेंडे के तहत आवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है? उन्होंने मजीद कहा कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के मुतवस्सित और गरीब तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। आपको बताएं कि रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का ऐसा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिला झिझक पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि पेट्रोल की नहीं, आवाम की जिंदगी जीने की कीमत में इजाफा हुआ है। शाजिया मरी का मजीद कहना है कि पाकिस्तानी आवाम को महंगाई के सुनामी का सामना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि हुकूमत दावे कर रही है कि पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। हमने हुकूमती दावे को बेनकाब किया है। पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, ऐसा कहना है हुकूमत का। शाजिया मरी ने इस पर कड़ी तनकीद की है। कहा कि महंगाई में इजाफे से आवाम का गुजारा नहीं हो रहा। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। पूरा पाकिस्तान इसके मुखालिफ है। 27 फरवरी को अवामी मार्च करने जा रहे हैं, ऐसा कहना है रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको तहरीक इंसाफ के ट्वीट के हवाले से बताएंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से गुरीदा फारूकी के प्रोग्राम पर तज़हीक आमेज ट्वीट। गुरीदा फारूकी का ऐसा तौहीन आमेज जुबान के साथ प्रोग्राम करना शर्मनाक है। PTI की जानिब से ऐसा ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि यही वजह है कि लोग प्रोग्राम को जी फॉर घटिया कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ट्वीट में यह भी कहा गया है कि उम्मीद करते हैं कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना सहाफत पर माफ़ी मांगी जाएगी। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म को सूबे की सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने खानेवाल वाक़े की तहकीकात से भी आगाह किया। खानेवाल वाक़या IG पंजाब ने गिरफ्तारियों से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से वज़ीर आज़म को एलिवेटेड एक्सप्रेस का संगे बुनियाद रखने की दावत दी गई। क़याम अमन के लिए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग में ऐसा कहा गया। वज़ीर आज़म की जानिब से पंजाब में तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आला को शाबाश दी गई। तरक्याती मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाए, ऐसा वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के तहत सहूलियात हुकूमत पंजाब का बेहतरीन कदम है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में अवामी आसानी के लिए मजीद मनसूबे लाए जाएँ। वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं।
अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दौरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। नैब ने आगा सिराज दौरानी पर 1 अरब 60 अरब का इल्ज़ाम लगाया है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 10 करोड़ मालियत की घड़ियां बताई जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनका मजीद कहना था कि बेनामी दारों रखने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि 1 अरब रुपए की चंद जायदादें आगा सिराज दौरानी के बेनामी दारों के खाते में डाली गई हैं। आपको बताएं कि नैब की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर कार्रवाई सामने आई है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दौरानी रेफरेंस में शरीक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम तुफैल शाह सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर फरार हो गया था। मुलजिम कई महीनों से गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश था। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई है। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत दीगर मुलजिमान अदालत में पेश। जाहिर जाफर के 3 मुलाजमीन के वकील सजाद अहमद भट्टी के हतमी दलाइल सामने आ गए। मुलजिमान जमील, जान मोहम्मद और इफ्तिखार का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। वकील सजाद अहमद भट्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है 23 जुलाई को तीनों मुलाजमीन के मुतालिक और उनके रोल तक मरकजी मुलजिम ने कोई बयान नहीं दिया था। 24 जुलाई को नई दरख्वास्त दी गई है। जमील और इफ्तिखार का नाम दिया जाता है। वकील का कहना है कि इस घर से जो भी मुतल्लिका बंदा था इसका मुकदमे में नामजद किया गया है नाम, जबकि मजीद कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में 19 गवाहान पेश किए हैं। वकील सजाद अहमद भट्टी ने कहा कि गवाहानात के बयानात में भी तजाद है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सारा कहती हैं कि पुलिस एहलकार अक्सा रानी का नाम बाद में लिखाया गया है। अभी आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की खाली नशिस्त का शेड्यूल जारी कर दिया है। खाली नशिस्त पर 9 मार्च को सिंध असेंबली की इमारत में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि कागजात की नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा कराई जा सकेगी, जबकि उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 फरवरी तक की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 मार्च को जारी की जाएगी। पोलिंग 9 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। ASF अमले ने दुबई जाने वाले मुसाफिर से करेंसी बरामद कर ली है। 70,000 सऊदी रियाल, 4,024 UAE दिरहम और 19,300 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुसाफिर आमिर सुहेल ने रियाल जूतों बाकी करेंसी जेबों में महारत से छुपा रखी थी। करेंसी बरामद करके मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तर्जमान ASF का ऐसा कहना है, जबकि उनका मजीद ये कहना है कि जब्त शुदा करेंसी की मालियत मुकामी करेंसी में 35 लाख रुपए से जायद है। तर्जमान ने मजीद कहा कि मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। मजीद कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पेशावर पर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें करेंसी मुसाफिर से बरामद कर ली गई है। 70,000 सऊदी रियाल, 4,024 UAE दिरहम और 19,300 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुसाफिर आमिर सुहेल ने रियाल जूतों में बाकी करेंसी को जेबों में महारत से छुपा रखा था। करेंसी बरामद करके मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अब्दुर्रहमान, नुमाइंदा कैपिटल TV हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ASF की जानिब से पेशावर एयरपोर्ट पर जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ASF के अमले ने कार्रवाई में दुबई जाने वाले मुसाफिर से जो है गैर मुल्की करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बरामद कर ली है। मुसाफिर से 70,000 जो के करीब जो है सऊदी रियाल, जबकि 4,024 जो है UAE के धर्म, इसके अलावा 29,300 रुपए जो है पाकिस्तानी रुपए जो है बरामद किए हैं। मुसाफिर आमिर सुहेल ने रियाल जूतों में और बाकी करेंसी जो है जेबों में बड़ी महारत से छुपा रखी थी। ताहम ASF के अमले ने फिजिकल तलाशी के दौरान जो है करेंसी को बरामद किया है। बरामद करके करेंसी को जो है मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी जो कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया है।
जब्त शुदा करंसी की मालियत जो है मकामी करंसी में 35 लाख रुपए से जो है वो जायद बनती है। मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और बरामद शुदा रकम समेत मुलजिम को जो है मजीद कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। मैं आपको इसमें मजीद बताता चलूं कि कोई भी मुसाफिर जो है $10,000 से जायद जो है रकम वो बैरून मुल्क ASF की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अब्दुर्रहमान, नुमाइंदा कैपिटल TV, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।